Welcome to our new video with new topic. In previous topic, we learned about the types of the solutions. There are main three types of the solutions considering the physical state of the solvent. But if we will consider the physical state of solute and solvent, there are main and sub considering 9 types of the solutions. I hope you have make it for the note down and you have learned it. You have memorized it. Now we will going to switch over our new next topic, that is called concentration of the solutions. Friends, in previous lecture we have seen that compositions of the components are very much important in determining the concentration and the application of such solutions in our daily life. मीन्स कोई भी सॉल्यूशंस में कॉम्पोजिशंस कौन सा है वो सबसे बड़ी बात होती है. हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड हाउ मच प्रपोर्शन ऑफ सॉल्वेंट, इट इज मेन थिंग. तो कंसिडरिंग द concept of proportion, we are going to learn about the new term that is called concentrations. Look at the screen. Compositions of a solutions can be described by the expressing its concentration, which can be expressed either qualitatively or quantitatively. कोई भी solutions की concentration represent करने के दो तरीके होते हैं, qualitatively representation एंड क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेशन. कौन सी साइंटिफिक है तो हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. अगर कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट का प्रपोर्शन कम होता है विच इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड इफ द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन सॉल्वेंट, such type of solution is known as concentrated solution. So qualitatively presentation of the concentration is done by dilute or maybe a concentrated solution. But in real life this kind of description can add a lot of confusion. कोई अगर बोले कि भी मेरे पास एक सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दूसरा भी बोलेगा कि मेरे पास भी सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है. दोनों बंदे के पास सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, फिर भी वो सर्टेन नहीं है कि दोनों सॉल्यूशन में द प्रपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फिक्स्ड. एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स देयर आर सो मेनी proportionate value for making concentrated solution, same as फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. एक शहर में हम जब स्टे करते हैं तो कोई जगह कोई एरिया का पानी जब हम पीते हैं तो उसका टेस्ट और वही शहर के दूसरे एरिया का पानी का टेस्ट अलग होता है. मतलब जो TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट विच डिजॉल्व इन दैट ड्रिंकिंग वाटर इन ए डिफरेंट मैनर. एंड दैट्स वाई using word dilute or concentrated solution is not a right way, and that's why qualitative presentation of concentration is not merely useful in our daily life, and that's why quantitative approach is being adopted. Okay, but in real life we will use quantitative description and the concept base in which the qualitatively and quantitatively both aspect can be included. Okay, now we can say there are 7 ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively. Which 7? Percentage weight by weight, percentage weight by volume, percentage volume by volume, ppm, then after mole fraction, molarity and molarity, percentage weight by weight, percentage volume by volume, percentage weight by volume, ppm, mole fraction, molarity and molality. There are 7 different types of concentration that we will see. First,
परसेंटेज वेट बाय वेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट? तो आपको देखना है परसेंटेज ऑलवेज भी 100 से ही कैलकुलेट किया जाता है। आप बोल सकते हो कि 300 मार्क की अगर एग्जाम ले ली तो उसमें से मेरे 180 मार्क्स आए, तो हम क्या रेशियो लगाएंगे? आउट ऑफ 300 आई गॉट 180, तो आउट ऑफ 100 हाउ मच आई गेट इट, देन यू विल गेट योर परसेंटेज। तो कोई भी क्वांटिटी में परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से ही होगा, तो ये परसेंट का मतलब 100 हो गया। जो अपवर्ड डब्ल्यू है उसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, एंड डाउनवर्ड डब्ल्यू है उसका मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। बी केयरफुल, upward W shows the mass of solute and downward W shows the mass of solution. The mass percentage of component of a solution is defined as the formula of mass of the component in the solution, which is called solute in gram, divided by total mass of the solution. When we are using word total mass, means for a binary solution, mass of solute plus mass of solvent is known as total mass of the solutions. Entirely term is multiplied by 100. This is the formula of percentage weight per weight. उसके बाद उसका एग्जाम्पल लेके हम लोग सोचते हैं। इफ यू हैव गिवन 10% वेट पर वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, अगर आपको 10% वेट पर वेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया गया है तो उसका डिकोडिंग कैसे करोगे, समझोगे कैसे, उसका मतलब क्या हुआ? इफ यू विल टेक द 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, बी केयरफुल, कीप योर कॉन्सेंट्रेशन ओवर हियर। इफ यू विल टेक 100 gram of solution in which glucose is being used as a solute, then it means entire 100 gram is a mass of solution, but 10% glucose is there, means 100 gram solution में 10 gram glucose है। If the solution is aqueous, means the mass of solute is 10 gram, means the mass of solvent is 90 gram, because the total mass of the solution is 100. तो be careful, अगर गलती से यहाँ आपने सॉल्यूशन में अगर कुछ रख दिया, मतलब गड़बड़ कहाँ हो सकती है, मिस्टेक कहाँ हो सकती है, यहाँ आपको 90 नहीं लिखना है, यहाँ आपको 100 लिखना है, बिकॉज यहां आपको बोला गया है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। बट हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कंट्रीब्यूशन सॉल्यूट का भी है और सॉल्वेंट का भी है। इफ सॉल्यूट इज यूज्ड एज ए ग्लूकोज, मीन्स द 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज देयर, द रिमेनिंग 90 ग्राम विल बी ऑफ वाटर। ये समझ में आना, तो 90 + 10 = 100। तो इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट वी विल कीप, we will keep 10% weight per weight, means ऊपर 10 आएगा, नीचे 100 multiply by 100, तो 10% weight per weight हो जाएगा। Then after, concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemical applications. For example, अभी का जो सिनेरियो, अभी का जो कंडीशंस चल रहा है उसमें कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइड which is used as a bleaching solution, 3.62% weight per weight. Look at the screen, 3.62% weight per weight. उसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर बना दिया जिसमें 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड है और बाकी पानी कितना, तो 100 - 3.62, मीन्स जो भी आंसर आएगा वो मास वो पानी का होगा। मीन्स द मास ऑफ वाटर plus mass of sodium hypochlorite will gives you 100 gram of solutions. Be careful, keep in mind. Our next term is volume percentage, percentage volume by volume, दोनों जगह upward and downward दोनों जगह volume है, मतलब यहाँ volume of solution and volume of solute दोनों कंसिडरेशन में रखना है। The volume of percentage is defined as, उसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी,
वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट विच इज कॉल्ड सॉल्यूट जो है उसका मिलीलीटर में जो प्रपोर्शन होगा, जो वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml विल बी ऑन डाउनवर्ड साइड, एंड एंटायर यूनिट, एंटायर वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए इसलिए. फॉर एग्जाम्पल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वियस सॉल्यूशन. ये देखो यहाँ, लुक एट हियर, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल एक्वियस सॉल्यूशन. उसका मतलब क्या हो गया, 100 मिली इथेनॉल का एक्वियस सॉल्यूशन लिया तो वो 100 मिली aqueous solution of ethanol contains 10 milli ethanol and 90 milli water. ये समझे, वाटर 100 मिली नहीं है, 90 मिली वाटर प्लस 10 मिली इथेनॉल मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 10 मिली and the volume of solvent is 90 milli, means total volume of the solution is 100 milli. वो रखना है आपको ध्यान में. सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट. जो भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है. 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन. आपको शायद पता होगा, आपके घर में कार होगी तो अगर रेडिएटर आता है, वो रेडिएटर का ऊपर से ढक्कन निकालोगे, उसमें एक लिक्विड सॉल्यूशन डाला जाता है, ग्रीन कलर का आता है, विच इज नथिंग बट ए इथिलीन ग्लाइकोल. When the combustion of petrol or diesel takes place in the engine, the heat is generated. To absorb that heat, coolant is being used, and that coolant is nothing but a 35% volume by volume solution of ethylene glycol. उसका मतलब क्या हुआ, 100 मिली इथेनॉल ग्लाइकोल का सॉल्यूशन लोगे आप तो उसमें 35 मिली इथेनॉल ग्लाइकोल होगा एंड 65 मिली पानी होगा. इट मीन्स द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज 35 एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 65 मिली. बी केयरफुल, ओके. एंड द कॉन्सेंट्रेशन फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 55.4 केल्विन. अगर कोई पानी का फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही 0 होता है, लेकिन इफ यू विल मिक्स द इथिलीन ग्लाइकोल एज ए सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द 35% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल कम डाउन फ्रॉम 0 डिग्री टू -17.6 डिग्री. Or we can say that in Kelvin from 273 Kelvin to 255.4 Kelvin. It means coolant property is a main attributes of this 35% volume by volume solution of ethylene glycol. Then after our third topic is mass volume percentage. यहाँ बदल गया, पहली जो टर्म देखी थी वहाँ परसेंटेज वेट बाय वेट था, सेकंड वन वॉज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, यहाँ कॉम्बो है परसेंटेज W बाय V, मतलब मास भी है एंड वॉल्यूम भी है. ओके, तो कैसे उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम. मतलब सॉल्यूट जो भी होगा वो सॉल्यूट का कंपोनेंट अगर आपको गिनना है तो सॉल्यूट का ग्राम में मास लेना है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. यूनिट को खास याद रखना फ्रेंड्स, अगर यूनिट में गलती कर दी आपको ट्विस्ट करने के लिए मास या तो वॉल्यूम लीटर में या तो किलोग्राम में दिया जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम और मिलीलीटर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 100. डोंट फॉरगेट इट. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन्स mass of the component in gram divided total volume of the solution in milliliter multiplied by 100. This is our third types of concentration unit. Fourth one is ppm, parts per million. The minimum when the proportion of solute in solvent is very trace amount. trace quantity में अगर कोई solvent में solute dissolved है
तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करने के लिए यही टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। आप ऐसे नहीं पूछ सकते हो कि आपके घर में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या कितना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या कितना परसेंटेज वेट बाय वेट है। यू कैनॉट आस्क लाइक दैट बिकॉज the proportion of salt in drinking water is in a trace quantity, and that's why to indicate the concentration of drinking water we often use the term ppm, parts per million. The formula of parts per million means number of parts of the components. यहाँ कोई यूनिट नहीं है, number of parts मतलब number of particles of the respective components divided by total number of the components of the solution. सॉल्यूशन अगर है तो उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों होंगे, दोनों के नंबर्स मिला दोगे आप, टोटल नंबर्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, वो नीचे आएगा। और नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अगर सॉल्यूट का डिफाइन करनी है पीपीएम तो सॉल्यूट का नंबर रखना है, सॉल्वेंट का पीपीएम फाइंड आउट करना है तो सॉल्वेंट का नंबर रखना है आपको। ओके, इन केस ऑफ द परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी, यही टर्मिनोलॉजी से आप कन्वर्जन ला सकते हो, मीन्स किस में, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे, ए लीटर ऑफ सी वाटर, समंदर का 1 लीटर पानी लिया। बी केयरफुल, में जो बोल रहा हूं उसको सुनो और स्क्रीन पर ध्यान दो। ए लीटर ऑफ सी वाटर, समंदर का 1 लीटर पानी लिया, अगर वो 1 लीटर बोला जाता है मीन्स दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सी वाटर, बट दैट मास ऑफ सी वाटर इज नॉट 1 kg, दैट मास ऑफ दैट 1 liter sea water is 1030 gram because the density of sea water is not 1, and that's why the volume and mass will not be equal for sea water. But if you will take pure water, the mass and volume both will be equal because the density value of pure water is 1 gram milli inverse. Be careful. और उसको दूसरी तरह से गिनती करते हम लोग तो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व कितना होता है, जो मरीन लाइफ जो जिंदा है, समंदर में जो मछलियां जिंदा है वो कैसे ऑक्सीजन लेती है, पानी में जो डिजोल्व हुआ जो ऑक्सीजन है वो उससे ही वो अपना जीवन सस्टेन करती है। तो ऑक्सीजन की मैग्नीट्यूड मात्रा कितनी होती है, 6 × 10⁻³ ग्राम O2 डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर। अगर 1 लीटर बोले और नीचे यहाँ पे ग्राम दिया गया है तो अगर मेरा पॉइंटर देखो 6 × 10⁻³ ग्राम O2 पर लीटर तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो गया, एंड 6 × 10⁻³ ग्राम O2 इन 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर मीन्स ये परसेंटेज वेट पे वेट होगा, क्योंकि ये ग्राम है तो ये ग्राम है। इफ बोथ आर इन ए मास फॉर्मेशन मीन्स परसेंटेज वेट पर वेट, बट हियर ग्राम इज टेकन, हियर लीटर इज टेकन, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड दैट 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम मीन्स यहाँ देखो ये परसेंटेज, यहाँ ग्राम सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्यूशन भी ग्राम में है, मतलब ये क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाय वेट और 5.8 ppm। ये आपको याद रखना है 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम, 10⁻⁶ ग्राम में जितने ग्राम होंगे, once again I am repeating, 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट होगा उतना उसका पीपीएम हो जाएगा। ज़्यादा उसके न्यूमेरिकल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके बारे में हम ज़्यादा देखेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स in water or atmosphere is often expressed in term of microgram milli inverse। ये भी एक यूनिट, उसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा डिस्कशन हम उसके न्यूमेरिकल्स में करेंगे, लेकिन बहुत सारे उसके यूनिट हो सकते हैं। पीपीएम कैन बी एक्सप्रेस बाय डिफरेंट यूनिट्स, बाय परसेंटेज वेट बाय वेट, बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डिफरेंट टाइप्स के उसके यूनिट हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। Okay, the fourth unit of to express concentration is ppm. Our fifth one is mole fraction. Fraction means part. Mole fraction का उसका सिंबल है small x.
the symbol of mole fraction is small x. Be careful. Symbol of mole fraction is x and the subscript is used right hand side of x denotes the component which define as. Suppose मान लो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट x. अभी मैंने आगे डिस्कस किया कि कोई भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है. तो दो कंपोनेंट मतलब एक हो गया अपना सॉल्यूट और दूसरा हो गया अपना सॉल्वेंट. तो दोनों के मोल फ्रैक्शन हो सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये समझ में आना चाहिए. दैट्स वाई x ऑफ सॉल्यूट और मे बी x ऑफ सॉल्वेंट which can be denotes at xa or xb where a is equal to solute and b is equal to solvent. तो total number of moles of the components divided by total number of mole of all components. Be careful. मोल फ्रैक्शन अगर आपको कोई एक सॉल्यूशन दिया गया है और यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, देन व्हाट यू विल डू. आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट देन यू हैव टू कीप मोल ऑफ सॉल्यूट over here and you have to keep moles of all solutions, means mole of solute and mole of solvents will be at downward side. You look at here, in a binary mixture the number of moles A and B are Na and Nb respectively. The mole fraction of A will be Xa. Xa means mole fraction of component A is equal to mole of A divided by mole of A plus mole of B. Only mole of A and mole of B. Why over here? Because our solution is binary. If trinary solution is there, means Na upon Na plus Nb plus Nc. Quaternary solution मतलब Na upon Na plus Nb plus Nc plus Nd. बराबर. फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. सपोज मान लो कोई एक सॉल्यूशन बाइनरी नहीं है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है उसमें, एन टाइप्स ऑफ आई टाइप्स नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. व्हाट वी विल डू, तो उसमें से कोई एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और बाकी के सब जो होंगे वो सॉल्यूट होंगे. तो क्या करना है उसमें, तो x1 इज इक्वल टू, उसमें से कोई एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है. तो x1, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 मींस x2. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 3 तो x3 रखना है. जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है उसका ही मोल यहां रखना है. x1 तो n1, x2 तो n2, x3 तो n3, x4 तो n4 डिवाइडेड बाय वो सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है वो सबका मोल सम करके यहाँ रखना है. n1 प्लस n2 पर डॉट 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 प्लस ni, जितने भी नंबर हो सकते हैं वो सब के मोल सम करके यहाँ लिखना है. तो एग्रीगेट वी कैन राइट n1 अपॉन समेशन ऑफ ni, मतलब कोई एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय moles of all components will gives you the mole fraction of the respective component. It is called mole fraction for a given solution. ये बहुत ध्यान से याद रखना. Sum of all the mole fraction is unity. Suppose मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है 1 and 2, means the mole fraction of component 1 is denotes as a x1 and the mole fraction of component 2 denotes as a x2. तो जितना मोल फ्रैक्शन x1 का होगा और जितना मोल फ्रैक्शन का वैल्यू x2 की, दोनों का सम करोगे तो टोटल विल बी 1. तो ये याद रखना है, अगर आपके सॉल्यूशन में i कंपोनेंट्स है, n कंपोनेंट मतलब नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस 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 xi is equal to 1. Total number of mole fraction of all components will always be 1. इसलिए सपोज मान लो कि कोई एक बड़ी सी फिगर आपको दी गई है, ये हुआ वो हुआ, इसका इतना है, लेकिन
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कुछ गिनती किए बिना व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन द आंसर विल बी 1। कोई भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन एक ही होता है। और दूसरी बात, कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन एक से कम ही होता है। उसमें भी याद रखना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज बी लेस देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और दोनों का सम ऑलवेज एक ही होगा। वो आपको याद रखना है। मोल फ्रैक्शन is unit very useful relating the physical properties of solution, say vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculations involving gas mixture। डिफरेंट तरह की उसकी एप्लीकेशन है, उसके बारे में लिखा गया है। यही नोट, अगर आपको मोल फ्रैक्शन की शॉर्ट नोट इफ यू हैव बीन आस्क्ड द राइट द शॉर्ट नोट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो यही सीक्वेंस में आप यही पॉइंट आपको लिखना है। दिस इज द फिफ्थ presentation of concentration, that is called mole fraction X. Then after our next journey is from molarity. The symbol of molarity is capital M. याद रखना है। Molarity M is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter. 1 liter means in SI decimeter cube in solution. उसको हम आगे और एक्सप्लेन करके देखते हैं। मोलारिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बी केयरफुल, अगर आपको मिलीलीटर में दिया गया है तो मिलीलीटर विल बी डिवाइडेड बाय मिलीलीटर विल बी डिवाइडेड बाय मिलीलीटर विल बी डिवाइडेड बाय 1000 एंड मिलीलीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, एंड यू हैव टू कीप द वैल्यू इन लीटर of the solution. Volume of the solution must be in liter and moles of solute must be in mole. ये मोलारिटी की डिफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो कि आपको 0.25 मोल लीटर्स, मोलारिटी को मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं और 0.25 कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। अगर मान लो 0.25 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स, उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, लीटर इनवर्स का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में द मोल ऑफ NaOH इज 0.25। हाउ टू आइडेंटिफाई मोल, वो आपको आना ही चाहिए। नहीं आता है तो मैं आपको जब न्यूमेरिकल सिखाऊंगा उसमें पूरा सा एक्सप्लेन करके हाउ टू आइडेंटिफाई मोल, हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम वॉल्यूम रिलेशन क्या है, वो पूरा डिस्कस हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यहाँ जस्ट हम लोग सिर्फ रेफरेंस देख रहे हैं डेफिनेशन का और फॉर्मूला का। नेक्स्ट आफ्टर अवर 5th, 6th, 7th unit of concentration is molality. The previous one is molarity and now this is molality. Molarity is capital M, molality is small m. Be careful, आपको याद रखना है। molality M is defined as the number of moles of the solute per kg of the solvent। ये सबसे बड़ा डेंजरस एरिया है। जो फॉर्मूला देखेंगे उसमें पता चलेगा। मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी की जो डेफिनेशन थी उसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही था, लेकिन नीचे क्या रखा गया था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, याद रखना। इन मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, और वो भी केजी में। If you have given mass of solution, then you have to minus the mass of solute from solution, and you have to identify the mass of solvent, and then you have to keep as a value. तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको करना है, और वो भी अगर ग्राम में दिया गया है तो ग्राम मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम मस्ट बी डिवाइडेड बाय 1000 टू आइडेंटिफाई, टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो ये हो गया मोलालिटी। मोलालिटी की सिंबल है स्मॉल m,
मोलारिटी की सिंबल है कैपिटल M। तो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल Kg इनवर्स सॉल्यूशन KCl का है, उसका मतलब क्या हो गया, 1 kg सॉल्यूशन नहीं है, 1 kg सॉल्वेंट है। 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाला है। बी केयरफुल, यहाँ गलती 110% होगी। यहाँ गलती से आप मास ऑफ सॉल्यूशन रख के ही गिनती करोगे और गलत हो जाएगा। आपको यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट रखना, सॉल्वेंट रखना है। बी केयरफुल, और वो भी केजी में रखना है। ओके ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू रिमेंबर। परसेंटेज वेट पर वेट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वाई? आप समझ सकते हो कि इन परसेंटेज वेट पर वेट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ये चार जो प्रेजेंटेशन है कॉन्सेंट्रेशन का, उसमें वॉल्यूम का कोई रेफरेंस नहीं आता है। उसकी फॉर्मूला आप चेक करोगे, एक भी जगह पे वॉल्यूम नहीं है, या सभी जगह क्या है, मास है। एंड मास इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, बट वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन की क्वांटिटी में वॉल्यूम आता है उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है उसमें टेम्परेचर की कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो आउट ऑफ 7 कितनी क्वांटिटीज ऐसी है जिसमें वॉल्यूम का रेफरेंस आता है? वो जिसमें वॉल्यूम का रेफरेंस आएगा वो सभी क्वांटिटीज विल बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। मीन्स इफ टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंज, द वैल्यू ऑफ सच क्वांटिटीज विल ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, ये याद रखना है। बट इफ the volume reference will not appear in the formula, that means there is no any effect of temperature in such type of quantities। तो चार क्वांटिटी आपको याद रखना है, परसेंटेज वेट पर वेट, ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। ये चार क्वांटिटीज ऐसी है जिसमें कोई वॉल्यूम का रेफरेंस नहीं है, दैट्स वाई द टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट है। बाकी जो है मोलारिटी है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वो सब में जहाँ जहाँ भी या तो सॉल्यूट का, या तो सॉल्वेंट का, या तो सॉल्यूशन का, किसी का भी अगर वॉल्यूम आ गया, मीन्स देयर बी ए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंज, मोलारिटी इज गोइंग टू बी चेंज, बट मोलालिटी विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये आपको याद रखना है। दिस इज बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी कैन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस बाय 7 वे, उसमें से देखा है। वो 7 में से 4 ऐसी क्वांटिटी है जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, और बाकी की 3 ऐसी है जो वॉल्यूम से रिलेटेड है। जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आई होप यू विल मेक द नोट डाउन ऑफ दिस टॉपिक और try to learn the formula of the respective quantities. We will meet in our next video lecture, in which we will learn about the next topic, vapor pressure and types of its, and the parameters which can affect by the different conditions. Okay friends, bye bye, tata, see you.